Hello friends, how are you all? कैसे हो आप सब लोग? Yes, just tell me quickly in the chat window, how are you all doing? Are you enjoying the lectures brought by BML? Yes, good afternoon. 2 मिनट के बाद टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सब लोग अभी आ रहे हैं. तो कल क्या पढ़ा? कल क्या पढ़ा थोड़ा मुझे बताओ शॉर्ट में. व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस which we discussed yesterday? I asked you to take note of that sentence. What was that sentence? Yes, anyone? Yes, Abhinav, what was that yesterday's last sentence? याद है क्या बोला था? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स. याद है? Yes, just tell me in the chat window that और द कमेंट सेक्शन. झूम पे पढ़ाने की आदत हो गई है तो चैट विंडो बोल रहा हूँ. यस, व्हाट यू आर सेइंग? यस, गुड आफ्टरनून. यस, गुड आफ्टरनून रिया, अनुज. गुड आफ्टरनून समृद्धि. फंटास्टिक टू सी यू अगेन बैक टुडे. चलो, तो आज आपको एक कल जो सेंटेंस लिखा था, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, इजंट इट? ये जो सेंटेंस कल लिखा था इसका थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. ये सेंटेंस मजा आएगा आपको. लेट्स सी. जीएसटी इज, आई होप यू आर ऑल सिटिंग विथ pen, pencil, notebook, calculator and bright mindset. As we discussed yesterday, आपको इन सब चीज़ों के साथ बैठना है टैक्स के लेक्चर्स के लिए. करेक्ट? जस्ट टेल मी इन द कमेंट विंडो, आर यू सिटिंग विथ ऑल दिस थिंग्स? आर यू कैरिंग ऑल दिस थिंग्स विथ यू? ओके, सो जीएसटी इज destination based, consumption based इनडायरेक्ट टैक्स. करेक्ट? इसमें से आपको क्या क्या समझ में आया है? यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड, द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन बेस्ड. सो दोज हु वर देयर यस्टरडे, टेल मी, कंजम्पशन बेस्ड का मीनिंग क्या है? कंजम्पशन बेस्ड का मीनिंग क्या है? मैंने अगर मूवी देखी ही नहीं तो उस मूवी टिकट का जीएसटी मैं कभी पे करूंगा ही नहीं. मीन्स ओनली इफ आई कंज्यूम अ पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विस, देन देयर विल बी अ चार्ज ऑफ जीएसटी. जीएसटी तभी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तभी अप्लाई होगा जब किसी गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? सो आई टोल्ड यू, व्हाट एग्जांपल आई हैड गिवन यू यस्टरडे, कि from last 6 months, almost 6 months, theaters are closed, so obviously no one has paid, no one has purchased any movie ticket, so obviously there is no question of GST being collected on movie tickets in last 6 months. So since there is no consumption, there is no tax. समझ में आया? तो क्या समझ में आता है? GST is a consumption based tax. क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो कि why it is indirect tax. Who will tell me logical answer as to why GST is indirect tax? Yes, tell me. Waiting for your answer. Who is going to answer? Okay, you're typing. What is the answer?
yes, अच्छा, बिकॉज इट इंक्लूड्स 17 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स. समझ में आया ना. कंजम्पशन बेस्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस नम्रता, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विस. ओके, बट ये जो रितिका ने आंसर दिया है एकदम सही है. बिकॉज द टैक्स इज लेवाइड ऑन समवन, correct, because the tax is levied on someone and other person pays it. Absolutely correct. Yes, Sanu is also given correct answer that we don't pay it to the government directly. Correct. Yes, Shafia says because we pay the tax indirectly. Correct. Abhinav is saying because there is a levy shift. Absolutely correct. And Sakshi is saying because it is not directly paid to the government. Perfect answers. Pranav, yes, Pranav, correct, because we do not pay directly to the government. Yes, so that's why it is an indirect tax. Burden and levy of GST is on different persons. Correct, that's why GST is an indirect tax. So we discussed why it is consumption based, we discussed why it is indirect tax. Question is now why we are calling it destination based tax. Any idea why we are calling it destination based tax? Yesterday we discussed that if you go in a restaurant in Maharashtra, then how much percentage of tax you are paying? 5-star restaurant nahi hai, normal restaurant. Then how much percentage of tax you are paying? Yes, perfect. 5%. Right. 5% का breakup क्या है? What is the breakup of 5%? 5% का breakup क्या है? 5% का breakup है 2.5% CGST and 2.5% SGST. So question is 2.5% SGST goes to which government and 2.5% CGST goes to which government? So very straightforward. CGST goes to, of course, as the name suggests, central government. Someone yesterday said on a lighter note, Modi government. सही एकदम. 2.5% जाता है मोदी गवर्नमेंट को एंड बाकी बचा हुआ 2.5% goes to which government? Yes, all of you are enthusiastically answering today also. Fantastic, fantastic. ये जो है ना 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, फंटास्टिक. आनंदिता, करेक्ट. आनंदिता is saying it correctly. 2.5% goes to state government and she is saying it goes to Maharashtra state government on the assumption that the restaurant is in Maharashtra. Again, मैंने अगर महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो मुझे 2.5% GST जो देना है वो मतलब जो कलेक्ट होगा, होटल will collect 2.5% CGST which will go to central government and 2.5% SGST which will be going to Maharashtra state government. Is the point clear? So assume restaurant is in say Goa. Then what will happen? Restaurant is in Goa and there is a 5% GST. Then yes friends, restaurant is in Goa and there is a 5% GST levied. So who will get how much GST? Which government will be entitled to collect how much GST? Yes friends, यदि रेस्टोरेंट गोवा में है, yes, fantastic. Central government 2.5% and yes, state government of Goa 2.5%. Fantastic, fantastic. So
2.5%, 2.5%। इससे क्या समझ में आता है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन मैटर्स। क्या मैटर करता है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन मैटर्स। कहां पे सर्विस कंज्यूम की गई है ये मायने रखता है, कहां पे गुड्स परचेज किए गए हैं ये मायने रखता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड where the goods are being consumed or where the service is being consumed. Getting it? So GST is destination based. समझ में आ गया why it is destination based, and कल ही समझ में आ गया था why it is consumption based, and of course yesterday only you had understood why it is, yes, indirect tax. Correct? So now one thing. So what happens? क्या होगा? Suppose सानू सपोज गया दुबई, सानू गया दुबई में, ओके, मतलब UAE, and he had a dinner in UAE's hotel. So which tax he will pay? Try to guess which tax he will pay. Will he pay Indian GST? Will he pay Indian GST? मेरा सवाल समझ में आ गया आपको? सानू गया दुबई में, वहां पे उसने खाना खाया रेस्टोरेंट में, तो विल ही पे इंडियन GST? प्रणव, एब्सोल्युटली करेक्ट. Obviously he will not pay Indian GST. He will pay some tax which is applicable in Dubai. Correct? Exactly. So Abhinav, absolutely correct. UAE में जो टैक्स लगता है वो टैक्स पे करेगा, दैट टैक्स विल बी पेड. एब्सोल्युटली करेक्ट. इससे क्या समझ में आता है कि एनी इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज डेस्टिनेशन बेस्ड. अगेन, एनी इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज डेस्टिनेशन बेस्ड. समझ में आया कि नहीं? अभी तक कुछ डाउट है तो बोल लो, कमेंट में बोल लो कुछ डाउट है तो. I am waiting for your doubts if any. Then I am going to go to some different principle with थोड़ा numbers वगैरह. I am going to tell you something. अच्छा, Aditya is saying no doubt. Abhinav is saying no doubt. Riya is saying no doubt. Exactly, Vaishali. Place of consumption is important. Yes. Perfect. Anyone else wants to ask anything, contribute anything? नहीं तो आगे जाते हैं. फंटास्टिक. नो डाउट वाली सिचुएशन है ना, दो जगह में आ सकती है. एक तो बिल्कुल 100% समझ में आ गया है, या सेकंड कुछ नहीं समझ में आया है. एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी. हमें अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया है. फंटास्टिक, फंटास्टिक. ओके, बाद में जैसे ही हम, मतलब मैं आपको बोलूंगा, इन बिटवीन आस्क यू टू as we do the presentation of some sums. I know we have MCQ pattern, but still जब हम कोई सम करेंगे GST का, इनकम टैक्स का, तो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे. You know why? Because to understand and to be able to solve MCQ, आपको तो पहले बेसिक एकदम मतलब ठीक से आना चाहिए. उसके बाद 1000 MCQ सॉल्व करो या 500, इट डजंट मेक डिफरेंस. बट फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग प्रोविजंस, लॉजिक, देन प्रेजेंटिंग इट ब्यूटिफुली. करेक्ट? सो दैट it becomes like a bible for you. That notebook becomes like a bible for you. कभी भी खोलो कुछ भी उस नोटबुक में, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा. यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द सब्जेक्ट. सो हमें विद द क्लास एक ब्यूटीफुल नोटबुक बनानी है. करेक्ट? सो ये ऑटोमेटिकली होगा. आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू हाउ टू गो अबाउट इट. करेक्ट? तो आप देखो, मजा देखो. कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला था, आज वो एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट करने वाला हूं. आप मुझे पहले बोलो फटाफट कि शुड आई इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन कि इट इज विजिबल फॉर यू. आप बोलोगे वैसे.
इफ इट इज विजिबल तो मुझे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑल्सो यू कैन टेल मी. ओके, लेट्स सी. तो क्या हुआ, देयर इज सम मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, देयर इज सम मैन्युफैक्चरर. इंक्रीज ओके, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं साइज स्क्रीन का, थोड़ा जूम इन करता हूं, ठीक है, विजिबल, ओके फाइन. देखो, देयर इज वन मैन्युफैक्चरर, ओके, कौन एक मैन्युफैक्चरर है. देन देयर इज वन होलसेलर, ओके. I am, purposefully going slow so that you also can write this along with me. There is one manufacturer whose name is A. There is one wholesaler whose name is B. Correct? And there is a retailer whose name is C. And there is a consumer, okay, whose name is D. Okay. Purposefully आपके साथ लिख रहा हूँ so that you also get time to write and slowly steadily we can go ahead. So there is a manufacturer, wholesaler, retailer. इन ये जो तीन है ना, तीन लोग, ये गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आते हैं फॉर पेइंग जीएसटी. तो इन तीनों को हम लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सप्लायर. हम इन तीनों को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज सप्लायर, करेक्ट. लेट्स कॉल देम एज सप्लायर्स. और ये है एंड कंज्यूमर. तो आप मुझे ये डायग्राम देख के बोलो कि जो फुल जीएसटी का बर्डन है वो किस पे आने वाला है. एंटायर बर्डन ऑफ जीएसटी विल बी ऑन whom? Let me see who tells me. I'm just checking your comments. Tell me. Entire burden of GST will be on whom? Yes, it will be on consumer. But will consumer go to government and pay? Will consumer go to the government and pay GST? No, absolutely. एकदम सही, Ritika. Yes. So Ritika, Abhinav, perfect, all of you. Yes. So government will, government will collect GST from whom? Government will collect GST from suppliers. Perfect. Government will collect GST from suppliers. तो एग्जैक्टली ये कैसे होगा देखते हैं. ओके, अब देखो एकदम डिटेल में जाते हैं, ठीक है. थोड़ा बस ध्यान रखना. कीप ऑन पेइंग अटेंशन, दैट्स इंपॉर्टेंट. एक ये करते हैं, वी विल इंसर्ट वन कॉलम इन बिटवीन. आपने कॉलम रोज नहीं बनाया तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट इंश्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस, ओके. एंड बाद में आप पढ़ोगे तो बस समझ में आना चाहिए, बस जस्ट इंश्योर दैट. क्या हो गया, इसके लिए कॉस्ट, ओके, इसके लिए एक कॉस्ट है, इस कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट है. तो इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, इसका प्रॉफिट है से 500 रुपीज, जस्ट एज्यूम. सो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 1500. एक्सेप्टेड. यू कैन जस्ट शो थंब इन द चैट विंडो. मैं चैट विंडो बोलूंगा ना तो आप समझ लेना कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कमेंट सेक्शन. ओके, नंदिनी वाज सेइंग रिपीट. व्हाट शुड आई रिपीट, यू टेल मी, आई विल रिपीट दैट. अब बस मुझे बोलो व्हाट आई शुड रिपीट. ओके, सो सब कुछ तो आपके सामने एक्चुअली है स्क्रीन पे. तो नंदिनी जैसे ही आप बोलोगी, आपका कमेंट आएगा तो आई विल ट्राई टू रिपीट व्हाट यू आर आस्किंग टू. ओके,
suppliers. Okay, I should repeat to you, suppliers. I am saying this manufacturer, wholesaler and retailer, ये जो तीन लोग हैं ना, इनको बोलते हैं suppliers. समझ में आ गया? इन तीनों को बोलते हैं suppliers. And the suppliers are usually liable to pay GST to the government. But burden किस पे है? Burden is on consumer. समझ में आ गया? Nandini, is it clear? Can I continue with the example? Let me know. Okay, मैं कंटिन्यू करता हूं. यस, फैंटास्टिक. तो देखो, सेलिंग प्राइस आ गई 1500. एज्यूम दैट जीएसटी ऑन दिस इज एट से 18%. जीएसटी कितना है? अच्छा, एक काम करते हैं हम, विल डू वन थिंग. चलो, तो 18% पे कैलकुलेट करो. आई वॉज गोइंग टू टेक अ सिंपलर फिगर, बट जाने दो. You are sitting with Calci, I am sure. So tell me, what is 1500 into 18%? Check and tell me on your Calci. मुझे तो पता है, but tell me. Tell me, is it 270? Yes. So अब जो प्राइस आएगी, इसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस. So invoice price of this goods is 1770. Accepted? 1770 is the invoice price. Correct? Now understand systematically. GST payable to government, ये बाद में देखेंगे कि GST payable to government कैसे कैलकुलेट होगा, ये बाद में देखेंगे. अब देखो, अब मुझे एक चीज बोलो कि फॉर दिस होलसेलर व्हाट इज द परचेज कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर यू नो इज सेलिंग गुड्स टू होलसेलर. करेक्ट? मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग गुड्स टू होलसेलर. yes or no? Wholesaler is selling goods to retailer. Retailer is selling goods to end consumer. So अब आपने मुझे बोलना है कि what is the purchase cost of goods for the wholesaler? Yes friends, what is the purchase cost of goods for the wholesaler? Okay, 1770 you are saying. अभी देखो, थोड़ा सा मेरा इंटरप्रिटेशन बीच में आता है, and your answer might be prima facie correct. Your answer might be prima facie correct, but answer here which I am going to write is 1500. तो purchase price हो गई 1500. Okay, why? I will tell you. Because you are excluding GST. Why to exclude GST? That also I will tell you. ये जो है होलसेलर, इसकी एडिशनल कॉस्ट है 500 रुपीज. व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट? 500. एंड से ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 300. सो नाउ टेल मी, ही इज सेलिंग गुड्स फॉर हाउ मच? Purposefully I am taking such figures so that you are sitting with calculator. ये इंश्योर हो जाएगा. देखते कौन फटाफट आंसर्स देता है. सो इट इज हाउ मच? तो आपको मतलब कल से आप कैलसी लेके ही बैठोगे कंपल्सरी. चलो, सो इट इज 2300. इस पे 18% जीएसटी कितना है? कैन यू कैलकुलेट 18% जीएसटी ऑन दिस? मेरे लिए तो बहुत सिंपल है. इज इट 414? परफेक्ट. अभिनव, करेक्ट. 414 is GST on this. So invoice price, is it 2714? Is the invoice price 2714? Yes, no? Yes. चलो, अब यहां तक so far so good.
अभी तक गुड्स कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचे हैं, गुड्स अभी तक होलसेलर के पास है। ये एक टिपिकल चेन है जो बीच में आ जाती है, एक टिपिकल चेन है जो जीएसटी में अप्लाई होगी। मैन्युफैक्चरर सेलिंग टू होलसेलर, नाउ होलसेलर विल सेल टू रिटेलर। फॉर रिटेलर what is the cost, purchase cost, tell me? For retailer what is the purchase cost, tell me? With the same logic at which you have taken cost for wholesaler, देखो मैंने क्या बोला, yes, fantastic, fantastic, 2300 exclude GST and take, correct? His additional costs are 200, his additional costs are 200, okay? मतलब खुद की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी ना रिटेलर की बाकी कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी ना, लाइक यू नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉस्ट 200 रुपए है। तो अभी एंड ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ से 200, सो फाइनली ही इज सेलिंग एट व्हाट प्राइस? आपको कैल्सी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। 2000, how much now? Yes, fantastic, 2700. So what is the GST on this now? Is it 486? Check and tell me. अच्छा, मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ, हाँ खुद चेक करके बोलो मुझे। ये 100 क्या बोला है आपने? Okay, it is 486, and what is the invoice price? Is invoice price, सुमेध आपने 100 क्या बोला है, मुझे नहीं समझ में आया। Yes, 3186 is your invoice price. Clear? 3186 your invoice price. Understand now. Who will pay this 3186? Who will pay this 3186? क्या लाजवाब ऑडियंस है, फंटास्टिक, यू आर रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरीथिंग, आई एम अटमोस्ट हैप्पी। आप मुझे बोलो कि ये 3186 पे कौन करेगा? फंटास्टिक, इट विल बी पेड बाय कंज्यूमर, करेक्ट? सो कैन आई से फॉर कंज्यूमर एमआरपी इज ₹3186 inclusive of GST? मैं कुछ GST एक्चुअली कैलकुलेशंस में नहीं गया हूं अभी, बट मुझे कुछ प्रिंसिपल्स आपको इनडायरेक्ट टैक्स के डिराइव करके दिखाने हैं। वो सिर्फ आपको वर्बली बोलूंगा ना मैं तो समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से, इसलिए नंबर्स लेके बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर? ये मत समझो कि डायरेक्टली कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट किया, ऐसी चीज नहीं है। Before going and telling you, you know, about the GST law and all, I thought that I will tell you basic principles of GST, जिससे आपको लॉ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा why we are doing it in this way. Just have faith and focus, that's it. Have faith on me and focus on the things, okay? They will be simple, I guarantee you. तो देखो बहुत बार MRP ऐसे और होती है 3186 inclusive of GST, inclusive of all taxes. So can you tell me what is the basic price of these goods? What is basic price of goods? Yes friends, what is basic price of this goods? अच्छा, हाँ, नहीं, बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स मतलब कंज्यूमर के लिए, ओके? कंज्यूमर के लिए बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स वाज 2700 एंड कंज्यूमर के लिए जीएसटी वाज 486, ओके? अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देते हैं, वेरी गुड, थोड़ा और ध्यान देते हैं। अब फोकस ऑन मैन्युफैक्चरर, गो इनटू द शूज ऑफ मैन्युफैक्चरर। जब मैं ऐसे बोलूंगा ना, गो इनटू द शूज ऑफ मैन्युफैक्चरर, आपको क्या करना है? आप घर पे बैठे हो आपको क्या करना है? सोचना है
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप जब करेक्ट पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो एक्चुअली अपने आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। सो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरर। फॉर मैन्युफैक्चरर व्हाट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन सेल्स। अभी मैं सेल बोलूंगा, बाद में जाके आपको बोलूंगा इट इज एक्चुअली सप्लाई। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई विल कॉल इट टैक्स ऑन सेल्स फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज द टैक्स ऑन सेल फॉर 270? परफेक्ट। लेस इनपुट टैक्स credit. It is nothing but tax on purchases. ये हमने assume किया है यहाँ पे 0. So tell me what is net GST payable to government? Can you tell me what is? So he will pay GST of 270 rupees to government. गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया इस समय? 270। करेक्ट? आर यू ऑल फॉलोइंग मी? अब देखो, नाउ वी आर इन हुज शूज। अभी आपको किसके पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करना है? यस फ्रेंड्स, अभी आपको किसके पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करना है? यस, 270 समझ में आ गया। सो गवर्नमेंट को अभी मिले हैं 270। जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो गवर्नमेंट को मिल गए 270 रुपीज। अब गुड्स आ गए होलसेलर के पास। मुझे एक चीज बोलो, सिंपल एक चीज बोलो कि होलसेलर ने गुड्स किसको बेचे? होलसेलर ने गुड्स रिटेलर को बेचे। होलसेलर ने जब गुड्स रिटेलर को बेचे तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? होलसेलर ने जब गुड्स रिटेलर को बेचे, करेक्ट, तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? यस, 414। परफेक्ट, बैंग ऑन। नाउ कम्स more relevant question on which you will have to think. Is wholesaler purchasing the goods for own consumption or for further selling? होलसेलर जो है वो गुड्स परचेस कर रहा है फॉर ओन कंजम्पशन और फॉर फर्दर सेलिंग। सही बोला है यश ने, करेक्ट, फॉर रीसेल। परफेक्ट, फॉर रीसेल। तो एक्चुअली ये जो अपना होलसेलर है उसने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे किया? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे किया? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे किया? 270। अब मुझे बोलो, जीएसटी इज डैश टैक्स, destination based, consumption based, isn't it? GST is consumption based. आपने ही मुझे 2 मिनट पहले बोला कि होलसेलर इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम, सो होलसेलर के ऊपर बर्डन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगेन, होलसेलर पे बर्डन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? yes, no, just tell me yes, no. Wholesaler should have burden or should not have burden? No, correct. No, perfect. यश, रितिका, अभिनव, रिया, परफेक्ट। उस पर बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए इसने जो पहले 270 रुपीज पे किए हैं वो माइनस हो जाएंगे इस 414 से, और वो गवर्नमेंट को पे करेगा सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस। सो ही विल एंड अप पेइंग टू गवर्नमेंट ओनली 144 रुपीज। तो दोस्तों, अब तक मुझे बोलो, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिल गया? अब तक गवर्नमेंट को
कितना जीएसटी मिल गया है? अब तक गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिल गया है? 270 rupees when manufacturer sold to wholesaler and 144 rupees when wholesaler sold to retailer. So yes, 414. Fantastic, fantastic. 414 rupees is the GST which government has received till now. तो ये है ना, ये टैक्स है. This is a tax which is levied at every point of sale. This is a tax which is levied at every point of supply or sale. हर एक पॉइंट पे ये टैक्स लगते जाता है. ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर से पे बर्डन है तो लास्ट स्टेज पे ही कलेक्ट होगा. ये मल्टीपल स्टेजेस में कलेक्ट होता है. आर यू गेटिंग इट? जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सप्लाई. और एक फीचर समझ में आ गया? जो जो फीचर्स मैं बोल रहा हूं वो फीचर्स आपके नोटबुक के टॉप मार्जिन में लिखते जाओ. ओके, दैट जीएसटी इज टैक्स विच इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सप्लाई, इजंट इट? अब देखो, अब ये नाउ पुट योरसेल्फ इन शूज ऑफ रिटेलर. अब मुझे बोलो, रिटेलर ने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया? हाउ मच डिड retailer collect from end consumer? Correct, 486. But again, retailer is not the consumer. Retailer is not the end consumer. Retailer is purchasing to sell further. Retailer is purchasing to sell further. तो अब मुझे बोलो कि रिटेलर ने जो पहले स्टेज पे, मतलब होलसेलर को जीएसटी पे किया है, उसका मिलेगा क्रेडिट. तो वो कितने रुपीस है? दैट्स हाउ मच? यस, दैट इज 400 एंड व्हाट अ ब्राइट ऑडियंस, फंटास्टिक. 414. बस, तो 72 rupees is now being paid to government by whom? By the retailer. So now can someone take the total and tell me what is total GST collected by government? What is total GST collected by government? Just take the total. 270 plus 144 plus 72. So is it 486? And दोस्तों, अपने कंज्यूमर पे बर्डन कितने का आया था? डोंट फॉरगेट, कंज्यूमर पे बर्डन कितने का आया था? कंज्यूमर पे बर्डन भी आया था 486 रुपीस का. इज इट मैचिंग? इज इट टैलिंग? कंज्यूमर पे बर्डन भी आया था 486 रुपीस का. करेक्ट? Is it matching? How is it matching? Tell me. It's matching at 486. 486. Absolutely correct. How? And what happened? Magic? Magic? Is it? It's not magic. It's totally logic. Correct. Magic की बात नहीं है, logic की बात है. चीजों को सेट ही ऐसे किया है गवर्नमेंट ने, एक अच्छी तरीके से चीजों को सेट ही ऐसे किया है कि टैक्स इज कलेक्टेड एट ईच स्टेज, बट द बर्डन इज ऑन एंड कंज्यूमर बिकॉज दिस इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. देखो, एक बार समझ लेते क्या हुआ. 486 रुपीज जीएसटी किसके पॉकेट से गए? किसके पॉकेट से गए? 486 जीएसटी किसके पॉकेट से गए? Friends, 486 rupees GST went from whose pocket? Consumer's pocket. Consumer से वो गया retailer को. Retailer को गया 486. Retailer paid 72 to government and
retailer kept 414 with himself because he had already paid to wholesaler. होलसेलर के पास गया 414, होलसेलर ने क्या किया 144 गवर्नमेंट को पे किया, 270 रुपए किसको पे किया मैन्युफैक्चरर, एंड मैन्युफैक्चरर पेड 272 गवर्नमेंट, एंड अब देखो गवर्नमेंट के कलेक्शन हो गया 486 रुपीस. इज द पॉइंट क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो. नंबर्स है ओके. जस्ट लेट मी चेक. Am I audible? Because Onkar is saying I am not audible. So please let me know in the chat window quickly. Yes. Prachi is saying yes sir, yes sir. So Onkar will have to check the things at his end. चलो तो yes sir, clear clear, fantastic. ये क्लियर हो गया. मतलब देखो ना, आप अभी ये सिस्टम आपके घर वालों को भी समझा सकते हो कि जीएसटी किस एंगल से चलता है, या आप अभी किसी को भी आपके दोस्त को समझा सकते हो. करेक्ट. ये क्रिस्टल क्लैरिटी आपको आ गई. अब चलो जल्दी से कोई डाउट से तो लिख दो. ये जो है ना एक्सेल शीट, इसका भी मैं आपको ये भेजता हूं, but it is not substitute for you writing the notes. You should write, but आपको चाहिए तो I will upload this also on the drive as a part of the notes. I'll give this also to you. So बाद में भी आप ये refer कर सकते हो अगर किसी ने लिखा नहीं है तो. चलो क्लियर. सो किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो आई एम गोइंग अहेड. So can I write like this? Can I write like this for your understanding? GST is notes. हाँ देता हूँ नोट्स देता हूँ आपको. बट अभी तक क्या है, ऐसे किसी सेक्शन का मैंने रेफरेंस ही लिया नहीं है. तो जब रेफरेंस लूंगा तब आई एश्योर यू आपके सामने नोट्स होंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलो. सो कैन आई से GST इज collected from suppliers. जो जो अभी तक समझ में आया है ना लिखो. इसको ही बोलते हैं खुद के नोट्स बनाने. ठीक है. ये हर सब्जेक्ट में फॉलो करोगे ना तो नथिंग लाइक दैट. ओके. सो सी, GST is collected from suppliers. However, burden of GST is on end consumer. Correct. GST is having mechanism. क्या mechanism है GST में? GST is having mechanism of allowing credit. Credit मतलब input tax credit. ये आपको एकदम डिटेल में बाद में ऑफकोर्स समझ में आने वाला है. GST is having mechanism of allowing input tax credit to the suppliers. GST is collected at every stage of supply. Yes or no? GST is collected at every stage of supply. और क्या क्या समझ में आया GST के बारे में अब तक? ये तो एक कल ही लिखा था. GST is destination based, consumption based, indirect tax. करेक्ट. यस और नो. तो क्या है, पहले थोड़ा इजी लैंग्वेज में सब्जेक्ट के प्रति लगाव बढ़ाते हैं और फिर आगे जाते हैं लीगल लैंग्वेज में. तब लीगल लैंग्वेज समझने के बाद इट विल बी लाइक पॉलिशिंग द सब्जेक्ट. चलो. तो if there is no doubt, just write in the comment section no doubt, and then we can go ahead. And if anyone wants to add anything in this, whatever points I have written, please let me know.
देखते किसी को कोई और पॉइंट ग्रास्प हुआ है क्या इसमें? नो डाउट, ओके, नो डाउट, फाइन. एनीथिंग यू वांट टू ऐड, मुग्धा, प्राची? If you want to add anything in this discussion, no doubt Riya is saying. अच्छा, नो डाउट है तो ये पहली वाली केस है ना, सब कुछ समझ में आ गया, वो वाली केस है. आई होप वो वाली केस नहीं, कुछ समझना ही नहीं है, वो वाली केस नहीं है. अच्छा, नो डाउट. इफ ऑल ऑफ यू आर सेइंग नो डाउट, लेट्स गो अहेड. ओके, देखो मजा देखो आप. यस सर, केस 1. ओके, बहुत ही सीरियस हो गया क्या डिस्कशन आज का? समझ में आया ना नंबर्स के साथ? ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर. ओके, फंटास्टिक वैष्णवी. ओके, यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, नॉट ओनली टैक्स, बाकी दो, बाकी तीन, ऑल क्लासेस आर यू एंजॉइंग? लेट मी नो. एंड टैक्स को मतलब लाइक कर रहे हो? हाउ इज इट गोइंग? लाइक कुछ ऑब्जर्व किया अपने आजू बाजू जीएसटी कल से? और 3-4 दिन से और अच्छा ऑब्जर्व कर पाओगे. अपने आजू बाजू में सब जगह जीएसटी है. यस, ऑल लेक्चर्स आर अमेजिंग. थैंक यू शाफिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. यस सर, एंजॉइंग टैक्स अ लॉट. थैंक यू रिया, थैंक यू. यस, चलो, थोड़े थोड़े दिन के बाद आपको ना मतलब सब कुछ समझ में आने लगेगा. तो एक केस लेंगे, बड़ी केस लेंगे कि अभी आईपीएल मैचेस फिलहाल में दुबई में हो रहे हैं, यूएई में हो रहे हैं आईपीएल मैचेस, दुबई एंड शारजा. तो इसमें जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें जीएसटी का क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे. नॉट ओनली दैट, उसमें इनकम टैक्स का क्या होगा. इतने इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेगी ना. मतलब फॉरेन प्लेयर्स है वहां पे, आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स है, ऑल ऑफ देम आर, द इवेंट इज एन इंडियन इवेंट बट द इवेंट इज इन दुबई. तो उसके ऊपर जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा, ये सब चीजें आपको स्लोली स्टेडीली समझ में आने लगेगी. ओके, बहुत केस स्टडीज लेंगे, मजा आने वाला है. फाइन, बट थोड़ा बेसिक से जाते हैं. विल डू थिंग्स विथ बेसिक. ओके, अब देखो, कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था इंपॉर्टेंट. मैंने आपको एक कल ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा था. क्या आपको क्वेश्चन याद है? क्या क्वेश्चन पूछा था कल आपको? एक बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा था कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है. तो आपने बोला था टैक्स. एग्जैक्ट नाम मैंने पूछा था तो आपने बोला था टैक्स लॉज, करेक्ट? तो मैंने आपको पूछा था कि टैक्स लॉज में आपके सिलेबस में कौन कौन से लॉज है. तो आपके सिलेबस में है इनकम टैक्स एंड आपके सिलेबस में है जीएसटी, कस्टम्स. इनकम टैक्स का वेटेज कितना है आपके सिलेबस में? 50 मार्क्स. जीएसटी कस्टम्स का वेटेज कितना है? 50 मार्क्स, करेक्ट? तो हमने थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया है जीएसटी. ओके, तो अब जब व्हेन आई एम डूइंग जीएसटी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जीएसटी लॉ. व्हाट डू यू थिंक? जीएसटी लॉ समझना है मतलब एग्जैक्टली क्या समझना है? जीएसटी लॉ समझना है मतलब एग्जैक्टली क्या समझना है? अभी मैंने बोला कि कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो कौन बोलेगा, मतलब हु विल बी द अथॉरिटी टू टेल यू कि यस ऐसा होना चाहिए? ये अथॉरिटी कौन है कि ऐसा होना ही चाहिए? यस, वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल आंसर.
who is that authority, मतलब ऐसा क्यों, या जीएसटी 18% है किन कुछ चीजों पे, कुछ चीजों पे 5% है, तो ये डिसाइड कौन, अच्छा सेल्स टैक्स अथॉरिटी. ओके, सो अथॉरिटी विल डायरेक्टली डिसाइड, इज इट, कि एनैक्टमेंट होनी चाहिए. ओके, सीबीआईसी. ओके, आपको ये सब समझ में आने वाला है आज के ही लेक्चर में. एमसी, अच्छा एमसीए. ओके, एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दे डोंट लुक आफ्टर टैक्सेस. नो, सीबीआईसी इज ओके. आईटी आज आपने सीखा ये पवन सर के लेक्चर्स में, आई नो. आईटीडी इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ओके, ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये रेगुलेट, ये अथॉरिटीज डिसाइड करने वाली नहीं है. ओके, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लॉ. ओके, लॉ करेक्ट. अब देखो मजा, देखो, इफ यू ऑब्जर्व नेम ऑफ एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, इफ यू ऑब्जर्व नेम ऑफ योर सब्जेक्ट, इट इज कंपनी लॉ, इट इज टैक्स लॉ. तो लॉ एंड कंपनी एक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जीएसटी एक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट इज पर्टिकुलर लॉ, सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ, सब्जेक्ट है जीएसटी लॉ. तो एक लॉ होता है ना, लॉ में बहुत सारे एनैक्टमेंट्स होते हैं. अगेन, लॉ में बहुत सारे क्या होते हैं, एनैक्टमेंट्स, बहुत सारे एक्ट होते हैं. एक लॉ बनने के लिए यू नीड मेनी एक्ट्स. गेटिंग द पॉइंट? फॉर वन लॉ to be in place you need many acts. Okay, so to constitute GST law, what constitutes GST law? मतलब आपको जीएसटी को समझना है, मतलब एग्जैक्टली क्या समझना है, मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ, और यू कैन से व्हाट इज द बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. समझ में आ गया? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीजीएसटी एक्ट 2017. कैन यू टेल मी इट्स फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या होगा सीजीएसटी का? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017. इज इट क्लियर? अब जब आप हमने डिस्कस किया कि व्हेन यू आर हैविंग फूड इन कर्नाटका, तो विच जीएसटी विल बी चार्जेबल? You are having a food in a restaurant in Karnataka, so which GST will be chargeable? Yes, friends. If you are having food in a restaurant in Karnataka, which GST is going to be chargeable? I am waiting for your answers. Okay, correct. CGST and SGST. तो इसलिए उस CGST को एडमिनिस्टर करने के लिए यू हैव गॉट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एंड फॉर enacting the and for charging the SGST part you have got SGST Act, State Goods and सर्विसेज टैक्स एक्ट्स. एक्ट्स क्यों बोल रहा हूं? अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एसजीएसटी होने वाले हैं. डिफरेंट स्टेट्स विल हैव डिफरेंट एसजीएसटीज एक्ट्स. सो किसी ने आपको अगर पूछा कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ और व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स जीएसटी लॉ, आंसर इज सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट. यूटीजीएसटी एक्ट क्या होने वाला है? तो अभी
सपोज यस, हाँ अभिनव करेक्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट। अरे 5 नहीं, 4:45 तक है। यस ना, 4:45 तक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। आपको क्या जल्दी भगाना है क्या मुझे? ओके, आई नो टाइमिंग का कंफ्यूजन हुआ आपका, एंड मैंने आपको कल बोला था कि कीप ऑन रिमाइंडिंग मी। यस, कितने कंफर्म कंफर्म, मेरे हिसाब से 4:45 तक जाना चाहिए हमें, उस हिसाब से मैंने आपको ये डिस्कशन स्टार्ट किया है। ओके, सो UTGST करेक्ट, SGST, तो यूनियन टेरिटरी, यू विल एक्सपांड इट। ओके, देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, इसको हम बोल सकते हैं IGST एक्ट, IGST एक्ट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं SGST एक्ट्स, एंड इसको हम बोल सकते हैं CGST एक्ट्स, CGST एक्ट। क्लियर? एनी डाउट? सो ये 4 एनैक्टमेंट्स हो गए। इसके अलावा देयर इज वन एनैक्टमेंट कॉल्ड एज GST कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। तो मुझे बोलो, सपोज आई गो टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ क्या है? स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? Is Chandigarh a state or union territory? Anyone from Chandigarh? Chandigarh is a UT. Perfect. It is a UT. तो चंडीगढ़ में आप गए, चंडीगढ़ के एक शॉपिंग मॉल में गए, ओके, उस शॉपिंग मॉल से आपने क्लोथ्स परचेस किए। क्या? कपड़े खरीदे, कपड़े शॉपिंग मॉल से चंडीगढ़ के, तो कौन सा GST अप्लाई होगा? चंडीगढ़ के शॉपिंग मॉल से कपड़े परचेस किए तो कौन सा GST अप्लाई होगा? यस फ्रेंड्स, ओके, नॉट ओनली UTGST अभिनव, UTGST इज वन पार्ट। क्या अप्लाई होगा? CGST प्लस UTGST। अगेन क्या अप्लाई होगा? आई नहीं, CGST प्लस UTGST। समझ में आ गया? क्या अप्लाई होगा? CGST प्लस UTGST। गेटिंग द पॉइंट? मतलब महाराष्ट्र के शॉपिंग मॉल, यस करेक्ट प्राची, फंटास्टिक, महाराष्ट्र के शॉपिंग मॉल से परचेस किया होता तो क्या अप्लाई होता? CGST प्लस SGST। बट चंडीगढ़ के शॉपिंग मॉल से परचेस किया तो क्या अप्लाई होगा? CGST प्लस UTGST। समझ में आ गया? यस, नो? इन शॉर्ट, ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, इंट्रा स्टेट मतलब अभी आपको 1-2 पॉइंट्स यहां पे लिख के देता हूं, फिर हम ये कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या अप्लाई होगा? CGST प्लस SGST ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। कहां पे हुआ है इंट्रास्टेट सप्लाई? इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है विद इन अ स्टेट, करेक्ट, विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, विद इन अ स्टेट, बट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको इंट्रा ही बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन UT, क्या अप्लाई होगा? ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन UT क्या अप्लाई होगा? इसको इंट्रा UT नहीं बोलते, इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं। तो देयर विल बी एप्लीकेबिलिटी ऑफ
CGST plus UTGST. समझ में आ गया? There will be applicability of CGST plus UTGST. And on interstate supply क्या अप्लाई होगा? On interstate supply what will be applicable? ओके अभिनव सही है, बट इंटरस्टेट पे क्या अप्लाई होगा? इंटरस्टेट मतलब मैं महाराष्ट्र में बैठ के कर्नाटका से गुड्स मंगवा रहा हूं. सिटिंग इन महाराष्ट्र आई एम ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम कर्नाटका, तो व्हाट विल बी एप्लीकेबल? ओके क्या मतलब डिफरेंट स्टेट? CGST, वाई यू आर सेइंग अभिनव CGST? जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या अप्लाई होगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. समझ में आ गया? तो एक बार ये समझ लो, रितिका नहीं, C एंड S कब अप्लाई होता है? इंट्रा स्टेट के लिए. विद इन द स्टेट है तो C प्लस S, विद इन द स्टेट है तो C प्लस S. दो डिफरेंट स्टेट्स में है ट्रांजैक्शन तो देयर विल बी चार्ज ऑफ IGST. परफेक्ट परफेक्ट. ये एग्जैक्टली कैसे होगा अभी वो देखते हैं. वी कैन नॉट लर्न ऑल द थिंग्स टुगेदर, राइट? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया इसका, जस्ट टू टेल यू द बॉडी ऑफ GST लॉ. ये समझ लो. तो ये जो IGST एक्ट है ना, दिस IGST एक्ट विल लुक आफ्टर दिस इंटरस्टेट सप्लाई. अगेन IGST एक्ट will look after this interstate supply. इतना बताने के लिए ही मैंने आपको ये अभी बोला है. तो कितने एनैक्टमेंट्स हो गए? टेल मी, बॉडी ऑफ GST लॉ में कितने एनैक्टमेंट्स हो गए? कितने एक्ट्स हो गए? यस फ्रेंड्स, 5 एक्ट्स. परफेक्ट, 5 एक्ट्स. एंड ये जो कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट है, बोलूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप. एज ऑफ नाउ जस्ट राइट इट, विल डिस्कस व्हाट इट इज लेटर ऑन. तो 5 एनैक्टमेंट्स हो गए. आफ्टर दैट यू हैव गॉट CGST रूल्स. दिस इज ऑल्सो बॉडी ऑफ लॉ. मतलब व्हाई रूल्स? ये एक्ट है ना, एक्ट कैसे फॉर्म होते हैं? हाउ आर दिस एक्ट्स फॉर्म्ड? एक्ट कैसे फॉर्म होते हैं? एक्ट कौन फॉर्म करता है? टू फॉर्म अ एक्ट द बिल हैज टू बी प्रेजेंटेड इन डैश. द बिल हैज टू बी प्रेजेंटेड इन डैश. And then it has to be given assent by dash. पढ़ा आपने CSET में? परफेक्ट परफेक्ट. पार्लियामेंट, यस करेक्ट. तो ये आपको क्या लगता है, जो एक्ट बनाने की प्रोसेस है, परफेक्ट, आपको क्या लगता है जो एक्ट बनाने की प्रोसेस है वो सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? इज इट अ tedious process or a simple process to make act? So understand, yes, then assent by president, correct. तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है to form an act. So क्या होता है, in act they set the basic principles. Act में क्या करेंगे? Act में they will give the basic principles, okay. And act में वो बोलेंगे फॉर सो एंड सो थिंग्स रिफर टू द रूल्स. क्या बोलेंगे? फॉर सो एंड सो डिटेल्स रिफर टू द रूल्स. ओके, तो जो रूल्स होते हैं, हु फ्रेम्स द रूल्स? हु फ्रेम्स द रूल्स? गवर्नमेंट फ्रेम्स द रूल्स. आपको फॉर एग्जाम्पल, यस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सही है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं.
लीगल लैंग्वेज से लेके जाता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर बैच. आई एम टेकिंग यू टू द लीगल लैंग्वेज. ओके, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट. तो मैंने आपको बोला कि CGST एक्ट जो है इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ. करेक्ट. सो CGST एक्ट है ना, इसमें टोटल है 174 सेक्शंस. कितने? 174 सेक्शंस. आप बोलोगे अरे सर हमें कैसे याद हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे. यू कैन आस्क टू एनी ऑफ माई स्टूडेंट, ओके, जिसने शायद मुझसे CS प्रोफेशनल किया होगा या कुछ भी. सेक्शन वाइज एंड तक याद हो जाते हैं लॉजिक के साथ. ओके, तो आप एक छोटा सा नमूना आपको पेश करता हूं, स्मॉल एग्जाम्पल. तो आप मुझे एक चीज लेमैन लैंग्वेज में बोलो. आप मुझे एक चीज लेमैन लैंग्वेज में बोलो. आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट इन द एक्ट. तो मुझे बोलो कि ऑन विच सप्लाई there is CGST. On which supply there is CGST? Yes friends, on which supply there is CGST? I'm waiting for your valuable answer. On which supplies there is CGST? Waiting for your answers. On कौन से सप्लाई पे CGST आता है? अरे क्या हुआ? Why is no one answering? Okay, अभी डिस्कस किया था 2 मिनट पहले that yes, fantastic. चलो, Anindita, sorry if I don't pronounce your name properly. Yes, Anindita. Okay, Anindita, correct. Prachi, okay, correct. तो देखो, इंट्रास्टेट सप्लाई पे CGST है. थोड़ा आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट पेशेंस के साथ थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ऑन तो एक्ट जो CGST एक्ट है उसका चार्जिंग सेक्शन जो है 174 सेक्शंस में जो 9th सेक्शन है, 9th सेक्शन वो क्या बोलता है? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस. डोंट राइट इट, जस्ट लिसन. ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेस देयर शैल बी a charge of central goods and services tax. सेंटेंस समझ में आ गया? तो ये कौन बोलता है? सेक्शन 9. तो मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं दे आर डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ दिस 5 थिंग्स. दे आर डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ दिस 5 एक्ट्स. करेक्ट. तो सेक्शन 9 क्या बोलता है? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज देयर शैल बी चार्ज ऑफ CGST and the rate, क्या रेट जो टैक्स का परसेंटेज है, the rate of tax will be as notified. मतलब टैक्स का जो परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज टैक्स कोई गुड्स पे लगेगा या सर्विसेज पे लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? yes, कौन डिसाइड करेगा? They say that it will be at the rate as notified. तो इसलिए हमें और क्या पढ़ना पड़ता है? We have to also know the notifications. Okay, notifications. Who issues notifications? Notifications issued by government on recommendations of GST Council. Correct. And will be collected in the manner as prescribed. Will be collected in the manner as prescribed. Prescribe कौन करता है? Rules. मतलब
एक एक्ट है ना, एक्ट, एक्ट में सब कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ चीजें एक्ट क्या करेगी, डेलीगेट, कुछ चीजें एक्ट डेलीगेट करेंगी। किसको डेलीगेट करेंगी, क्विकली बोलो मुझे, कमेंट बॉक्स में क्विकली बोलो, दैट एक्ट विल डेलीगेट फ्यू थिंग्स टू होम। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कम कर देगी। एक्ट विल से फॉर सम थिंग्स गो टू नोटिफिकेशंस एंड फॉर सम थिंग्स गो टू रूल्स। यस और नो, क्लियर, yes or no? Quickly tell me, did you understand? The importance of notifications and rules. Sir, repeat. Acha, what should I repeat? Ria, I'll tell you what I'm trying to say. I'm trying to say, जो act होते ना, act is passed in the parliament. Act has to be passed in both the houses of parliament and then given assent by president. तो मुझे एक बोलो रिया, इज इट, यस आई एम रिपीटिंग, करेक्ट। तो एक सिंपल चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक्ट है ना, एक्ट में बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, बट वो एग्जैक्टली कैसे वर्क होगा ये कहां पे दिया होगा, रूल्स, ये दिया होगा रूल्स में। और कुछ चीजें कहां पे दी होगी, कुछ चीजें दी होंगी नोटिफिकेशंस में। मतलब आज आपने अगर इतना भी समझा कि जीएसटी समझने के लिए मुझे सिर्फ एक्ट समझ के फायदा नहीं है, मुझे एक्ट के साथ क्या क्या समझना पड़ेगा, एक्ट के साथ मुझे रूल्स समझने पड़ेंगे, एक्ट के साथ मुझे नोटिफिकेशन समझने पड़ेंगे। जब ये सब चीजें एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझूंगा तो ही मुझे जीएसटी लॉ समझ में आएगा। आर यू getting now is it clear, Aniruddha and Riya? हाँ करेक्ट रिया, तो अभी रूल्स एंड नोटिफिकेशंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। तो रूल्स सेट करना आसान है, फंटास्टिक, रूल्स सेट करना आसान है रादर देन पासिंग एंड चेंजिंग समथिंग इन द एक्ट। इसलिए एक्ट क्या बोलता है, एक्ट डेलीगेट्स सम ऑफ द थिंग्स, एक्ट विल डेलीगेट सम ऑफ द थिंग्स टू द rules and some of the things to the notifications. okay, तो मतलब क्या होगा, कल जाके जब हम पढ़ेंगे तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू टेल यू सोर्स, हर एक चीज का आपको सोर्स बताना चाहूंगा मैं। ऐसा नहीं कि दिया है पढ़ो बस काम खत्म, ऐसा नहीं, ये ऐसा है क्यों है, क्यों है और ऐसा कौन बोलता है, ये भी समझना मैंडेटरी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बॉडी ऑफ दिस लॉ। तो कितने चीजें हो गई टिल नाउ, 7. 8th thing is circulars issued by, अपना आ गया देखो, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यस, 2 minutes लेफ्ट। ये तो हमेशा का ही प्रॉब्लम है, मुझे बोलना ज्यादा ही होता है, टाइम कम होता है। 2 ही पॉइंट्स बचे तो हो जाएंगे, 2 ही पॉइंट्स बचे तो हो ही जाएंगे। सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीआईसी, सर्कुलर्स क्या करते हैं, दे गिव क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज विच आर कंफ्यूजिंग, विच आर एम्बिग्यूअस। आप जरा स्पेलिंग देख लेना, चलो, विच आर डिफिकल्ट फॉर इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं, which are difficult for interpretation। तो कुछ चीजें सपोज डाइसी है ना, डाइसी, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन सर्कुलर्स में मिल जाएंगे आपको, which are issued by CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs। And lastly there is one more issue, that is decided cases by Honorable Supreme Court।
तो क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ मेनी थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी लॉ. ये एक चीज मुझे बताओ कमेंट्स में. एंड प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक, हाउ यू लाइक्ड टुडेज लेक्चर and have you liked it and what was the input from today's lecture. Please let me know in the comment box and we will conclude in next 1 minute. Thank you from my side. Any doubt, I'll just wait for 1 minute for your doubt and comments and then we will close today's session. Chalo, so yes, of course, see you tomorrow. Yes, thank you very much, thank you. So if there is no doubt, I'll sign off. Okay, thank you very much.